ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ جلال کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے پاک مقدس اور جلالی نام میں معزز ناظرین اور سامعین، آپ سبوں کی خدمت میں یہ خاکسار خادم آج پھر آداب بجا لاتا ہے اور ان انمول لمحات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پھر سے میری زندگی میں یہ وقت بطور بونس ملا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر آن لائن اس پرستش میں بھی شریک ہو سکوں اور پھر آپ کے ساتھ مل کر اس زندگی بخش کلام کو بھی سیکھنے والا ہو سکوں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند خدا آج اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے میری اور آپ کی روحانی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ دانیل نبی انبیاء اکبر میں سے ایک ہے اور بڑی اہم ترین کتاب عہد عتیق میں باقی کتابوں میں پائی جاتی ہے، جو ایک نبوتی کتاب ہے، اور اس نبوتی کتاب کا ہم نے آیت با آیت مطالعہ شروع کیا ہے اور ہم 9 باب میں پہنچے ہیں، اور اس 9 باب کے اختتام پر جب ہم پہنچیں گے، آج تو نہیں لیکن اس وقت بڑی اہم ترین باتوں پر جو ڈینیل کے 70 ہفتے 70 ویکس سے متعلق بھی ہم سیکھیں گے کہ وہاں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کا ہمارے ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کو پس منظر کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر پتہ چل جائے، یوں آپ بہتر طریقہ سے ان آیات سے متعلق سیکھ پائیں گے جن پر ہم جائیں گے۔ لیکن آج آپ کی خدمت میں یہ بتاتا چلوں کہ دانیل خدا کی حضوری میں اسرائیل کے بیہیف پر اور یہودا کے بیہیف پر خود گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا اور اسرائیل اور یہودا کے بیچ میں گویا مرد خدا یہ عظیم نبی ایک درمیانی کا رول پلے کر رہا ہے، اور وہ پوری قوم کی طرف سے خدا کے حضور اقرار کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی ان میں شامل کرتے ہوئے اقرار کرتا ہے، اور یہ گرامر کے اعتبار سے صیغے استعمال کرتا ہے، جیسے ہم اور ہمارے اور ہمارا، یوں کر کے۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا کا بندہ اپنے آپ کو بھی ان میں شامل کر رہا تھا۔ اور اس موضوع پر تو میں نے کئی ایک بائبل سٹڈیز اس سے پہلے آیت با آیت کروائیں، ان میں لیڈ کیا ہے، لیکن آج میں ان تمام تفاصیل اور ان تمام ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن آج آپ کی خدمت میں دانیل 9 باب اور اس کی 15 آیت سے آگے بڑھوں گا، اور وہ باتیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ اور یاد کیجئے 9 باب کی 15 آیت سے لے کر 19 آیت تک یہ جو آیات ہیں، یہ 5 آیات ہیں، اور ان 5 آیات
में तकरीबन एक ही तरह की बात पाई जाती है, और मैं चाहूंगा कि इस मुख्तसर से वक्त में इन पांचों आयात पर आपके साथ बात करूं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम मिलें तो फिर हम उसके बाद वाली आयात पर बात करें कि वहां पर दानियल क्या कह रहे हैं और जिब्राइल उनकी किस तौर पर हेल्प करता और मुआवनत करता है। यहां पर यूं लिखा हुआ है, दानियल अपनी दुआ को कंटिन्यू करते हैं। दानियल की दुआ बहुत मारूफ दुआ है, नोबाब में बहुत मारूफ दुआ है। यहां लिखा है, और अब ए खुदावन हमारे खुदा, जो जोर आवर बाजू से अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया और अपने लिए नाम पैदा किया, जैसा आज के दिन है हमने गुनाह किया, हमने शरारत की है। मैंने पहले आपकी खिदमत में बयान किया था कि वो हम और हमारे के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। ये जो लफ्ज लिखा है ए खुदावंद, ये अहद अतीक में याहवे जो नाम है इब्रानी जबान में, वो यहां पर मुस्तआमल है। ए खुदावन हमारे खुदा, ए मालिक, ए खालिक कायनात, ए याहवे, क्या जो जोर आवर बाजू से अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। ये किन लोगों की बात हो रही थी? उस वक्त जो लोग मौजूद थे, इस्राएली लोग, उनकी बात? नो, ये इस्राइल और यहूदा के अबाओ अजदाद की बात हो रही है। जब मूसा के वक्त मूसा ने उनकी क़यादत की और मिस्र की गुलामी से निकलकर बियाबान का सफर करते हुए मुल्क कनान तक पहुंचे थे, और अब अपनी हरकतों के सबब से, अपने गुनाहों के सबब से, बागियानापन के सबब से, शरारत के सबब से, बुत परस्ती के एतबार से, गैर कौमों के साथ समझौता करने के एतबार से, खुदा को तर्क करने के एतबार से इसराइल असूर की असीरी में और यहूदा बाबल की असीरी में गया, और 70 बरस तक जैसा खुदा ने कहा इनको इस असीरी में रहना था, और अब चंद बरस बाकी थे। और इस भेद के खुलने के बाद कि दानियल अपनी पूरी कौम की तरफ से अपने आप को भी शामिल करते हुए अपने पापों और अपने गुनाहों का इकरार करते हुए हमें नजर आते हैं कि ए याहवे, ए खुदावंद पाक खुदा, आप जो हमारे अबाओ अजदाद को, हमारे बाप दादा को अपने जोरे बाजू से, यानी अपनी कुदरत से मुल्क मिस्र से निकाल लाए और अपना नाम पैदा किया। इसका मतलब ये कि आप जैसा कोई और नहीं है। कौमें और उम्मतें जान गई और पहचान गई कि आप साहिब कुदरत हैं, और आप अपना जलाल किसी और को नहीं देते, और आप जैसा कोई और नहीं है। उस खुदा की कुदरत को वो याद करता है और कहता है, आपने अपने नाम को पैदा किया जैसे आज के दिन तक है, यानी ए खुदा, आप आज भी जोरावर हैं जैसे माजी में जोरावर थे। और इवन दानियल से लेकर अब तक वो खुदा जोर आवर है। उसका मुकाबला दुनिया की कोई कौम, कोई मजहब, कोई दीन, कोई बादशाह, कोई शख्सियत कर नहीं सकता। शैतान कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा मगलूब रहा, गालिब नहीं आया, क्योंकि खुदा सबसे अजीम कुदरत है। और
खुदा की मेहरबानी को, खुदा के तरस को याद करते हुए अब यहां पर दानियल ये कह रहे हैं कि आज के दिन तक आप वैसे ही हैं, हमने गुनाह किया। पूरी कौम की तरफ से इकरार है, हमने शरारत की। और शरारत का लफ्ज अरबी जबान में शर से निकला है, जिसके माना है बदी, और शरारत के माना भी बदी करना यानी गुनाह करना के हैं। हमने गुनाह किया, हमने शरारत की, एक ही बात है। और ये जो कुदरत की बात है, जब मैं इफ्सियों के खत पहले बाब और उसकी 19 और 20 आयत में देखता हूं, तो वहां पर पौलुस रसूल इफसस की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। कौन सी कुदरत? जो शुरू से होती रही, दानियल के वक्त भी थी, पौलुस के वक्त भी थी, और आज भी उसकी अजीम कुदरत है। और वो इकरार करते हैं उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुवाफिक। वाओ, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बैठाया। तो पौलुस इस बात का इकरार कर रहे थे कि उसकी कुदरत जैसे पहले थी वैसे ही उसकी कुदरत आज भी है, और इसी तरह उसकी कुदरत आइंदा भी रहेगी। और मुझे और आपको इस बात को याद रखना है कि हमारा खुदा, वो जो उनको गुलामी से निकाल कर लाया, आज भी वही है, सादिकुल कौल है, ला तब्दील है। उसने खुद फरमाया, मैं खुदावंद ला तब्दील खुदा हूं, अनचेंजेबल गॉड। उसकी तारीफ और उसकी हमद करने की जरूरत है। और फिर आयत 16 में, ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने तमाम सदाकत के मुताबिक अपने कहरो गजब को अपने शहर यरूशलेम यानी अपने कोहे मुकद्दस से मौकूफ कर, क्योंकि हमारे गुनाहों और हमारे बाप दादा की बदकरदारी के सबब से यरूशलेम और तेरे लोग अपने सब आस पास वालों के नजदीक जाए मलामत हुए हैं। मैं समझता हूं कि दानियल की ये जो दुआ है ना, काश के अगर आपके पास बाद में वक्त हो तो आप इस 9 बाब को तलावत करें, और इसकी तकरीबन तीसरी आयत से आप देखेंगे कि दानियल कैसे दुआ करता है। इससे दुआ का नमूना मिलेगा, कई ख्याल मिलेंगे कि हम किस तरह दुआ करें अपने लिए, अपने गिराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और अपने मुल्क के लिए। यह सिर्फ एक मशवरा है आपके लिए, करना नहीं करना वो तो हम जानते हैं कि हम पर मबनी है, लेकिन ये एक मुफ्त में मशवरा था कि अगर हम दुआ के स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं तो फिर दानियल 9 बाब की तिलावत करें बाद में, ताकि बेहतर तौर पर ख्याल मिल सके कि खुदा से कैसे बात की जा सकती है। यहां पर आयत 16 में याद कीजिए, आयत 15 और उससे पहले दानियल इसराइल के बिहाफ पर, जो शुमाली सल्तनत थी, खुदा के हुजूर गुनाहों की मुआफी के लिए फरियाद करता और मिन्नत करता है। और अब यहां ये जो आयत 16 है, यहां से वो यरूशलेम और हैकल की रेस्टोरेशन यानी बहाली के लिए दुआ करना शुरू करता है, यरूशलेम की बहाली के लिए, और इसराइल के और यहूदा के गुनाहों का वो यहां पर इकरार करता है। और क्या कहता है? ए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। मिन्नत करना, इल्तमास करना, बड़ी आजिजी से किसी से दरखास्त करना, बड़ी आजिजी से। लेकिन यहां दानियल
खुदा से कह रहा है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, क्या? कि तू अपनी तमाम सदाकत के मुताबिक, सदाकत का लफ्ज सादक से निकला है और सादक के माना है सच्चा, रास्त। चूंकि ए खुदा तू सच्चा है, अपनी सदाकत और अपनी रास्ती के मुताबिक, यहां पर लिखा है अपने कहरो गजब, अपने कहरो गजब यानी अपने गुस्से को कहर और गजब, इनको अपने शहर ए खुदा, अपने शहर, खुदा का शहर कौन सा है? शहर यरूशलेम। और क्योंकि हम गाते भी हैं, ए यरूशलेम तू खुदावंदा शहर। और यहां पर आगे अपने शहर यरूशलेम यानी अपने कोह मुकद्दस, कोह के माना है पहाड़ के, जैसे कोह सार या कोह मरी, और कोह पहाड़ी को कहते हैं या पहाड़ को, और मुकद्दस के माना पाक के हैं। कोह मुकद्दस यानी पाक पहाड़। और यहां यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जिसके साथ एक बहुत ऊंची तो नहीं लेकिन एक पहाड़ी थी जिस पर यह हैकल बनी थी। और वो कह रहा है यरूशलेम यानी अपने कोहे मुकद्दस से अपने कहर को मौकूफ कर, यानी अब बंद कर दे, अपने गुस्सा को अब टाल दे, मजीद कहरो गजब ना हो। और हमारे यानी इसलिए ऐसा कर क्योंकि हमारे गुनाह, हम जो यानी इस वक्त यहूदा के लोग और इस्राएल के लोग, हम जो अभी इस पुश्त के लोग हैं, हमारे बाप दादा, हमारे गुनाहों और हमारे बाप दादा अबाओ अजदाद की बदकरदारी, यानी उनके करदार के बारे में बदकरदारी, यानी इसके माना भी बुराई और गुनाह के हैं। उनकी बदकरदारी के सबब से यरूशलेम और तेरे लोग, यरूशलेम, मैं यरूशलेम पढ़ता हूं, मैं यरूशलम नहीं पढ़ता क्योंकि ये लफ्ज यरूशलम नहीं है, ये यरूशलेम है। अपने कहर और अपने गजब को टाल। सबब यह है कि हमने और हमारे बाप दादा ने तेरे हुजूर बदकरदारी की है, और उसके सबब से यरूशलेम और तेरे लोग जो यरूशलेम में रहने वाले हैं, यहूदा के लोग, अपने आस पास वालों के नजदीक जो उनके गिरदो नवा में लोग थे, उनके नजदीक जाए मलामत हुए हैं। इसका मतलब जाए मलामत होना से मुराद है बेइज्जत होना, उनकी तहकीर हुई है। ए खुदा तेरे लोग हैं और उन्होंने गुनाह किया और इर्द गिर्द के लोगों में उनका कोई मकाम नहीं रहा, उनकी इज्जत नहीं रही, इसराइल की हशमत भी जाती रही है। और अब ए खुदा उनको मुआफ कर और अपने इस कहरो गजब को अब टाल और मौकूफ कर, उनकी इस बेइज्जती को अब तू मुकम्मल तौर पर मौकूफ कर दे। ये इसराइल की बादशाही के वापस आने से मुताल्लिक भी, यहूदा को फिर से बहाल होने से मुताल्लिक भी ये बात हो रही है। और आयत 17, बस अब ए हमारे खुदा, देखिए ये इन आयात में ए खुदावन, ए हमारे खुदा, ए खुदावन खुदा के अल्फाज हमें मिलते हैं, यानी जिससे वो मुखातिब है। बस अब ए हमारे खुदा अपने खादम की दुआ, ये खादम कौन है? दानियल, वो नबी था, बड़े नबियों में उसका जिक्र है।
खुदा उससे कलाम कर रहा था और बोलता था, और वो अपने आप को यहां पर कहता है कि अपने खादम की दुआ। उसने ये नहीं कहा मैं नबियों में एक बड़ा नबी हूं, मेरी दुआ को सुन। नो, उसने अपने आप को खादम कहा। आजकल कोई दानियल होता तो उसके नाम से पहले भी बहुत कुछ लगा होता और उसके नाम के बाद भी बहुत कुछ लगा होता। क्या ख्याल है आपका? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने यही कहा, ए खुदावन, ए हमारे खुदा, अपने खादम की यानी मेरी दुआ को, और दुआ के माना खुदा से बात करना है, मांगना नहीं है। अगरचे ये बातें दुआ में शामिल हैं, लेकिन दुआ लफ्ज के माना खुदा से बातें करना है। अपने खादम की दुआ और इल्तमास सुन। इल्तमास करना, मिन्नत करना, ये आजिजी की तरफ इशारा करता है। सुन, और अपने चेहरा को अपनी ही खातिर, यानी अपने नाम की खातिर, अपनी बड़ाई के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए, अपने मकदस पर जो वीरान है जलवा गर फरमा। अपने मकदस पर, मुकद्दस और मकदस दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। बाज़ औक़ात कई लोग मुकद्दस को भी मकदस पढ़ लेते हैं और मकदस को भी मुकद्दस पढ़ लेते हैं। मुकद्दस के माना पाक, अलग किया हुए, और मकदस जबर जेर का ख्याल रखना जरूरी है। मकदस ये हैकल की तरफ इशारा है। आज मैं और आप खुदा का मकदस, खुदा की हैकल है, क्योंकि खुदा हमारे दिलों में अपने पाक रूह की सूरत में रह रहा है। ये एक अहम तरीन बात है जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी गौर तलब बात है। ए खुदा, अब इल्तमास है, मिन्नत है कि अपने चेहरा को अपने ही नाम की खातिर अपने मकदस पर यानी हैकल पर जो वीरान है उस पर जलवा गर फरमा। यानी ए खुदा, नाराज ना हो, अपने कहरो गजब को टाल दे और अब तरस खा उन पर निगाह कर, देख उनकी तरफ, देख। ये इसके माना है। और आयत 18, ए मेरे खुदा, कान लगा कर सुन। यानी दानियल दिल से दुआ कर रहा था और वो बड़ी तवज्जो दे रहा था अपनी दुआ को, बोझ के साथ, दर्द के साथ। फॉर्मेलिटी नहीं थी, रस्मी दुआ नहीं थी, ये बड़ी अहम तरीन दुआ थी जो दानियल ने यहां पर की है। ए मेरे खुदा, कान लगाकर सुन और आंखें खोल कर हमारे वीरानों को और उस शहर को जो तेरे नाम से कहलाता है देख। ए खुदा, कान लगा, अपनी आंखें उस शहर की तरफ यानी शहर यरूशलेम और उस मकदस की तरफ, हैकल की तरफ लगा जो वीरान पड़ा है। कर्ज खा। उससे पहले वो गुनाहों का इकरार कर चुका था। अजीजों, क्या मेरे लिए और आपके लिए यहां पर कोई सबक है? ऑफ कोर्स है। बहुत सारे असबाक में से एक ये है कि जब मैं और आप अपनी कौम के बिहाफ पर सदके दिल से खुदा के हुजूर रखना में खड़े होते हैं, तो हमारा खुदा यकीनन हमारे वीरानों पर, हमारा मुल्क बेसिकली तो हम पाकिस्तान से है ना, महंगाई जोरों पर, करप्शन, बहुत सारे
इलाके वीरान नहीं पड़े हुए, तरक्की नहीं तनजली है, कर्ज तले हम दबे हुए हैं। दूसरे ममालिक पर निगाह करें और फिर अपने मुल्क की आलूदगी देखें, लाकानूनियत देखें, ना इंसाफी देखें, हमारे राइट्स हुकूक जहां पर पामाल होते हैं। खुदा आज चाहता है कि हम अपने मुल्क के बिहाफ पर खुदा के हुजूर इकरार करने वाले हों और उससे मिन्नत और अल्तमास करने वाले हों। खुदावन, अपना कान इधर झुका, अपनी आंखें इस तरफ लगा, ताकि ये मुल्क वाकई पाक सर जमीन बन जाए। ऐसे सादिक खादमों को खुदा ढूंढ रहा है जो उस मुल्क में दुआ करने वाले हो सके। दिखावे के लिए दुआ या तहरीकें चलाने से कुछ नहीं होता। पोशीदगी में खुदा के हुजूर अश्क बहाने की जरूरत है। और लिखा है, देख के हम तेरे हुजूर अपनी रास्तबाजी पर नहीं, अपनी रास्तबाजी पर नहीं, क्योंकि हम रास्तबाज नहीं, हम नारास्त हैं, बल्कि तेरी बेनिहायत रहमत पर तकिया करके मनाजात करते हैं। यानी तू बहुत रहीम है और हम उस रहमत को याद करते हुए तुझसे दरखास्त करते हैं। दानियल अपनी कौम के बिहाफ पर रब को मना रहा था। आज हमें अपने रब को मनाने की जरूरत है। और आखिरी आयत, ये आयत बहुत पुरमाना है, जरा गौर से इस आयत को सुनिएगा। ए खुदावन सुन, ए खुदावन सुन, ए मेरे खुदा, ए खुदावन सुन, ए खुदावन मुआफ कर, ए खुदावन सुन, ए खुदावन मुआफ फरमा, ए खुदावन सुन ले और कुछ कर। ए मेरे खुदा, अपने नाम की खातर देर ना कर, क्योंकि तेरा शहर और तेरे लोग तेरे ही नाम से कहलाते हैं। बड़ी अहम आयत है। कभी जब आप और मैं दुआ करते हैं तो सोचने का मकाम यह है, इस तरह के जुमले खुदा के हुजूर कभी अदा हुए हमारी जुबान से? ए खुदावन सुन, ए खुदावन मुआफ फरमा, ए खुदावन सुन ले और कुछ कर। ए मेरे खुदा, अपने नाम की खातर देर ना कर, क्योंकि तेरा शहर और तेरे लोग तेरे नाम से कहलाते हैं। याहवे तेरे नाम से कहलाते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ कर। जब हम शख्सी तौर पर दुआ करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं होता हम सोचते हैं बस इतनी देर के लिए दुआ करके, हाँ जी बस अब टाइम हो गया, चलो जी। या हम दुआ करते हैं आंसुओं के साथ, जुमले रूहुल कुद्स देता है और फिर आमीन करने का दिल नहीं करता। जब मैं पैदाइश की किताब और उसका 32 बाब देखता हूं, पढ़ूंगा नहीं, उसकी 22 आयत से लेकर 32 आयत तक, पैदाइश 32, 22 से 32 आयत, वहां पर याकूब एक कुश्ती लड़ रहा है और खुदा से कह रहा है, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। बाद में वो हवाला तिलावत करना। और मैं सोचता हूं हमें दुआ में खुदावंद के हुजूर ये मिन्नत और इल्तिजा करनी है, ओ खुदावंद हमारे मुल्क की तकदीर को बदल दे, वरना मैं तेरे हुजूर से उठने का नहीं हूं। हम उसके रहम को तब्दील करें, रहम के लिए दरखास्त करें और खुदावंद ऐसा करेगा। हम उस फरीसी की तरह ना हूं
जो खुदा के हुजूर गया और अपने आप को कुछ समझता था, मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं हूं। नहीं, हम उस महसूल लेने वाले की तरह जिसने अपनी छाती पीट पीट कर खुदा के हुजूर अपने गुनाह का इकरार किया, इकरार करने वाले हूं कि खुदावन हमें मुआफ कर, और यकीनन वो मुआफ करने के लिए तैयार है। मेरी दुआ है कि खुदावन मुझे और आपको आज की इस बाइबल स्टडी के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। छोटी सी दुआ आपके साथ मिलकर करना चाहता हूं। ऐ खुदावन पाक खुदा, आपके कलाम की इन गहरी और अमीक बातों के लिए आपका शुक्र और आपकी तारीफ करता हूं। मुझे और मेरे हम ईमान भाइयों और बहनों को फजल अनायत फरमाइए कि हम आपके चेहरे के दीदार के तालिब रहें, अपनी खानदान, बरादरी, कौम और मुल्क और शहर के भी है पर आपके हुजूर अपने पापों का इकरार करने वाले हूं, ताकि आप अपने चेहरे को उस तरफ लगाएं, मुतवज्जे हूं, कान लगाकर सुने और खुदावन हम पर रहम करें, हम पर, हमारे खानदानों पर, हमारे मुल्क और शहर पर रहम कीजिए, ताकि खुदावन पाक खुदा हम दुनिया में बदनाम ना हो, आपके नाम की तौहीन और तकफीर ना हो, बल्कि आपका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर होता चला जाए। हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह खुदावन के वसीले से, आमीन। खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए खुदावन के हाथों में महफूज रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।